Hello students, in previous lecture we have studied about field of view. Field of view is region जिसके अंदर हम image को पूरा देख सकते हैं. Today we gonna learn about the size of mirror required to see complete image of an object. Size of mirror. यहाँ पे हम जो मिरर की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ प्लेन मिरर की बात ही कर रहे हैं. Size of mirror required to view complete image. मिरर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? इफ वन पर्सन हैविंग हाइट 6 फीट, अगर किसी की इंसान की हाइट 6 फीट है तो उसको उसकी पूरी इमेज देखने के लिए, फुल इमेज का मतलब क्या है, आपके हेड से फुट तक पूरा आपको क्या दिखाई दे, इमेज दिखाई दे. सो उसके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए मिरर की? इज इट 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट, कितना होना चाहिए? सो आप देखते हो आपके घर में डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल होती है, उसके अंदर उसकी हाइट भी थोड़ी सी ग्राउंड से उठाई होती है. Like mirror is not placed exactly down से start नहीं होता, but you can see your feet. So that means the height of mirror should be less than, मतलब maybe less than, हम कह सकते हैं कि हम अगर हमें इमेज देखनी है तो अगर मिरर की हाइट थोड़ी कम भी होगी तो चलेगी. अब कितनी कम होगी वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे. एंड वेयर शुड बी प्लेस, इसको किस जगह रखिए कि हमें इमेज पूरी दिखाई दे. सो इट इज मिनिमम हाइट, मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू कंप्लीट इमेज. I'm going to consider one plane mirror, and I am considering here a extended object which is nothing but group of point objects which is at a distance x from plane mirror. इसके दो पॉइंट हैं B एंड A. अब हमें इमेज देखनी है तो हम अपनी इमेज कैसे देखते हैं? आई से देखते हैं, मतलब देयर शुड बी ए ऑब्जर्वर. सो हम बोल रहे हैं इसकी जो आई है वो कहाँ पर है? इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे है. सो अब मुझे कंप्लीट इमेज देखनी है इसकी. सो इट्स फुट ray is going like this and after reflection it will go like this, but वो पीछे आती आपको assume होगी. So it's like this point, and for A point like this and this. So आपको these 2 points are A dash, image of point A, and B dash. This is foot and this one is हेड. आपको देखो इस पॉइंट पे आपको हेड भी दिखाई दे रहा है ब्लू वन, एंड फुट की इमेज भी आपको दिखाई दे रही है. सो आपको मिरर की रिक्वायरमेंट कितनी है? दिस पॉइंट इज M1 एंड M2. सो M1 M2 इज द हाइट ऑफ मिरर विच इज रिक्वायर्ड, दिस हाइट. एंड आई एम एज्यूमिंग द ऑब्जेक्ट हैविंग हाइट h. ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है? h. अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वी नो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, इसमें इमेज फॉर्मेशन होती है दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड इमेज फ्रॉम मिरर आर इक्वल. तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितना होगा? x. एंड जब भी आप रे फॉर्मेशन करते हो, सो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक आई जस्ट सेंड वन इमेज रे हेयर, देन आफ्टर दिस आई जस्ट ट्रेस इट बैक, so to get point B dash. Now M1A, yeah, correct. Now we can say in
triangle AM1 M2, this one, and triangle A dash B dash. Are they both are similar? See, one angle, this is common. So we can directly say these two triangles are similar. Triangle A M1 M2 is similar to triangle A dash B dash. Okay. So we can say this base upon height are in same ratio. So AM1 divided by AM1 divided by M1 M2 is equal to A dash divided by A dash B dash. And we have studied image properties of plane mirror, that in that we have also studied that the height of object and height of mirror are same, magnification is same. So ये height कितनी होगी h. So A dash B dash की value कितनी आएगी? So A dash B dash is equal to h, and AM1 is x and A dash is 2x. From here to here, this one is also x and an x, 2x. We are just placing the values AM1 x by M1 M2 is equal to A dash 2x by A dash B dash, which is equal to h. H is height of object. So M1 M2 is equal to h by 2. It means this value is equals to h by 2. So that means the minimum size of mirror required to view complete image, देखने के लिए the height should be, the size should be half of the height of object. तो उसकी जो size होनी चाहिए mirror की कितनी होनी चाहिए? Object की height से half होनी चाहिए. And as I told कि आप dressing table भी जो आपके घर में होती है वो भी कुछ distance up होती है. That means it should be placed in upper half. Lower half में नहीं है. H by 2 in which height mirror should be placed in upper half of the object. ये upper half में है, lower half में नहीं है. अगर आपको अपनी पूरी image देखनी है, it is not like sir we are just saying that minimum size of mirror required to view complete image is h by 2, so we can place anywhere. No, it should be between h by 2 to h, means upper half. Okay, so this is size of mirror required to view complete image. Now we are going to understand more. I am just assuming an object of 2 meter which is placed 5 meter from this one, and mirror is placed in this manner, which is 3 meter above the ground, and the size of mirror is not 3 meter, 1.5 meter above the ground, and size of mirror is 1 meter. Now they will ask कि जो image दिखाई देगी उसका size क्या होगा. So यहाँ पे आप देखो आपका ऑब्जेक्ट कितने में हाइट का है. योर ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर. अब आप सीधा सीधा ये नहीं बोलोगे
first we can say कि the size minimum size required to view image is h/2 which is equal to 1 मीटर, और 1 मीटर आपकी मिरर की लेंथ भी है। बट हम सीधा ही ये नहीं बोल सकते हैं कि जो आपको इमेज दिखाई देगी वो पूरी की पूरी दिखाई देगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड कि इट शुड बी प्लेस्ड इन अपर हाफ। अब ऑब्जेक्ट है 2 मीटर का, सो मिरर शुड बी प्लेस्ड बिटवीन 1 to 2, लाइक इट शुड बी प्लेस्ड अबव 1 मीटर अबव द ऑब्जेक्ट। बट ये कितने ऊपर है? 1.5। इट मीन्स ये ऑलरेडी 0.5 ज़्यादा ऊपर हो चुका है, तो आपकी जो इस हाइट के ऑब्जेक्ट की इसमें आएगा कितना पार्ट आएगा? ओनली 2 माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस दिस हाइट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। सो ओनली 0.5 मीटर ही है जो अपर हाफ में है, बाकी जो 0.5 मीटर है मिरर का पार्ट वो जस्ट ऊपर निकल गया है। सो वो उसका कोई हमें वैल्यू उसका कुछ नहीं करना है। सो जो आपको इमेज देखनी है इस ऑब्जेक्ट की वो सिर्फ और सिर्फ 0.5 की वजह से दिखाई देगी। सो विच विल बी डबल, सो 0.5 into 2, 1 मीटर। वी कैन सी इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओनली 1 मीटर। हम सिर्फ हाफ इमेज देख सकते हैं। वाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू हेयर ऑल्सो कि ऑब्जेक्ट शुड मिरर शुड बी प्लेस्ड इन अपर हाफ, लाइक इस रेंज शुड बी h/2 to h, लाइक अपर हाफ में होना चाहिए। इस केस में क्या था? ऑब्जेक्ट 2 मीटर था, तो हमने सीधा बोला कि h/2 मतलब 1 मीटर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है मिरर की, बट इट शुड बी प्लेस्ड 1 मीटर अबव, क्योंकि उसका जस्ट हाफ 1 मीटर पे होना चाहिए। यहाँ पे 1.5 मीटर के बाद रखा है आपने, तो इसका मतलब 2 मीटर पे तो सिर्फ 0.5 मीटर ही है यहाँ पे, उसका जस्ट डबल कर दो तो सिर्फ 1 मीटर आएगा आंसर। बाकी का जो 0.5 मीटर है वो ऊपर का सरफेस दिखाएगा। क्लियर है? लाइक अगर आपका कभी मिरर h/2 से ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होगा? ड्रेसिंग टेबल इज सेम केस। जब आप ड्रेसिंग टेबल के सामने आते हो, इट्स नॉट लाइक इफ योर हाइट इज 6 फीट तो वो 3 फीट की नहीं होती, वो 4.5 फीट की होती है। सो उस केस में क्या होता है? इफ इट इज प्लेस्ड बिलो h/2 सो यू कैन सी फीट एज वेल ग्राउंड। अगर वो h/2 से ज़्यादा नीचे है तो आप अपने पैरों के साथ अपने उसकी ग्राउंड और एक्स्ट्रा सरफेस को देख सकते हो। सिमिलरली अगर ये ऊपर है, जैसा इस केस है, इस पर्टिकुलर केस में मिरर ऊपर है, सो इन दिस केस आपको छत दिखाई दे देगी, आपको अपने हेड से ऊपर का भी इमेज दिखाई देने लगेगा। क्लियर है? नाउ हियर देयर आर 2 नोट्स, स्पेशल पॉइंट्स। नोट 1, नेक्स्ट द साइज, इमेज जो आपकी बनेगी वो साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करेगी। इमेज कंप्लीट बनेगी, बट हमें कितनी दिखाई देगी दैट विल डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मिरर। इमेज फॉर्मेशन इज independent of size of mirror, but image that can seen to our human eye वो डिपेंड करेगी साइज ऑफ मिरर पे। इमेज फॉर्मेशन कहीं डिपेंड नहीं करेगी, जो इमेज आपको दिखाई दे रही है वो डिपेंड करेगी। इसको आपको जनरली समझना है। आप एक कोई भी छोटा सा मिरर लो, आपके घर में होगा, यू कैन सी, अगर आप उसको थोड़े डिस्टेंस पे रखोगे तो आपको इमेज दिखाई देगी। इफ़ यू गोना कम एंड उसके अंदर थोड़ा साइड से देखोगे तो आपको साइड का पार्ट दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब वाइल शिफ्टिंग, हम अगर ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा है तो उसे अंदर की इमेज अलग से दिखाई दे रही है। दैट मीन्स इमेज तो पूरी बन रही है ना, बस आपको चेंज करना पड़ेगा, बट हमें कितना दिखाई दे रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा साइज ऑफ मिरर पे। सो इमेज फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, whereas image that can be seen to human eye is depend upon size of mirror. But image that can be seen to human eye is depends
अपॉन साइज ऑफ मिरर। क्लियर है? सेकेंड, हाइट ऑफ मिरर जो है क्या वो इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है? ये तो कट ही गया ना। द साइज ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ separation between object and mirror. So I can write here second point, size of mirror to view complete image is independent of separation between object and mirror. So in this topic what we have studied कि minimum size of mirror required to view complete image, और इसमें हमने प्रूफ किया है कि जो मिनिमम साइज होगा मिरर का इट शुड बी हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इसका भी पर्टिकुलर पॉइंट है कि इट शुड बी प्लेस्ड इन अपर हाफ। वो अपर हाफ में होगा तभी आपको इमेज दिखाई देगी। इफ h/2 थोड़ा भी ऊपर ज़्यादा हो जाएगा सो वो क्या हो जाएगा, आपको इमेज पार्शियल दिखाई देगी। इफ इट इज लिटिल बिट डाउन साइड देन यू कैन व्यू फीट एज वेल ग्राउंड पार्ट। इफ इट इज अप साइड तो आपको हेड के साथ साथ कुछ ऊपर का पार्ट भी दिखाई देने लगेगा। एंड इसके दो स्पेशल पॉइंट है, इमेज जो बनेगी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ मिरर, बट जो इमेज हमको दिखाई देगी दैट विल डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मिरर, एंड साइज ऑफ मिरर टू व्यू कंप्लीट इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन सोर्स ऑब्जेक्ट एंड मिरर। वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।